us start chapter 2, session 2 of acid, bases and salts. In last lecture, we have studied about definitions of acid and base. In this lecture, we are going to study about the reactions of acid and base with different substances. Let us start. A reaction of metals, carbonates and hydrogen carbonates with acids. तो metal carbonate and hydrogen carbonate मतलब metal carbonates and metal hydrogen carbonate वो दोनों के reaction acids के साथ कैसे होंगे we'll see now. We'll start with the activity 2.5. Take two test tubes, label them as A and B. This is first we'll read what we have to do in the activity, and after that with the help of the image we will understand how the experiment is carried out. Take about 0.5 gram of sodium carbonate, that is Na2CO3. It is the formula of sodium carbonate in test tube A. So in test tube A you have to take sodium carbonate and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate, that is NaHCO3 in test tube B. Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tubes. दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर ए एंड बी के अंदर हम HCl डालेंगे. What do you observe? What you will observe that we will see when we will see understand with the help of the image. After that, the gas which you have got from the activity, from this experiment, pass that gas produced in each case. मतलब टेस्ट ट्यूब ए में भी और बी में दोनों में गैस प्रोड्यूस होने वाला है कोई थ्रू लाइम वाटर. और लाइम वाटर जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन द इमेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. तो अभी हम इमेज में हम देखेंगे कि कैसे करना है और क्या करना है. दिस इज द एक्टिविटी सेटअप. We have to take two test tubes, test tube A and one more test tube will be there, test tube B. Here in test tube A we have taken sodium carbonate, that is 5 gram. In that we are going to add hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. When the reaction between hydrochloric acid and sodium carbonate takes place, gas will be released. The gas will come out through this tube. Okay, the gas will be coming out, and that gas we will allow to pass through another test tube in which we have taken calcium hydroxide or you can say lime water. ठीक है, तो बस इतना हमें समझना था कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट होंगे तो वन गैस विल प्रोड्यूस. ओके, सो व्हाट व्हिच इज दैट गैस विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. कैसे पता चलेगा, ये एक्टिविटी करना पड़ेगा वो गैस को जानने के लिए. ये वाला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाला टेस्ट ट्यूब के अंदर वो गैस हमें इंसर्ट करना है. ठीक है, अब देखेंगे कि वो गैस कौन सा है. The reaction occurring in the above activity are written as, जो भी हमने तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए लेकर एक्टिविटी किया है तो आपको बी के साथ भी सेम रिजल्ट मिलेगा. एक गैस मिलेगा जिसको हमें वो लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर पास करना है. तो हम देख लेते हैं कि पहले टेस्ट ट्यूब ए और बी में कैसा रिएक्शन होगा. टेस्ट ट्यूब ए, in that we have taken sodium carbonate, that is Na2CO3. वो सॉलिड था पाउडर फॉर्म में. We have added HCl जो वाटर के साथ मिक्स मतलब dilute HCl मतलब वाटर मिक्स होगा. Both will give the reaction of these two will give NaCl plus water plus carbon dioxide gas. तो
तो जो हमें गैस मिलने वाला है वो होगा CO2, जो ऑलरेडी हमें इक्वेशन से पता चल रहा है. इन टेस्ट ट्यूब बी ऑल्सो विल डायरेक्टली सी द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट देखो आप क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, we will get same result. सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये फिक्स होगा. ये आपको पता होना चाहिए. ये बेसिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जब भी लिखेंगे हम तो भी ये आपको लिखना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट विद एसिड गिव्स सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. On passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला था उसको हम लाइम वाटर के अंदर पास करेंगे तो रिएक्शन कैसा मिलेगा. तो दिस इज लाइम वाटर व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, स्टैंडर्ड 7 में 8 में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हो तो उसके अंदर मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं. प्रेसिपिटेट ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं. तो प्रेसिपिटेशन अब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होगा एंड साथ में वाटर भी मिलेगा. अंडरस्टूड, वाटर प्लस प्रेसिपिटेट. तब सी, तो ये है लाइम वाटर. धीरे धीरे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हम डाल रहे हैं तो थोड़े देर तुरंत ही डाला कार्बन डाइऑक्साइड और मिल्की वाइट हो गया, ऐसा नहीं होगा. आफ्टर सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम दिस मिल्की वाइट. मिल्की वाइट बन जाएगा. नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स रहेंगे और ऊपर वाटर का पार्ट रहेगा. अंडरस्टूड, तो ऐसा होगा उनका कलर चेंज. और बहुत बार ये एक्टिविटी हम क्या करते हैं कि हम खुद मुंह से जो एग्जॉस्ट एयर निकलता है वो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं बहुत बार, तो उसके कारण भी ये व्हाइट होता है, मिल्की वाइट बन जाता है, क्योंकि जो हम एक्सेल करते हैं गैस वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो यही रिएक्शन के अंदर हम कंटिन्यूअसली, ये हमें मिल गया, चलो ये इक्वेशन हमें मिल ही गया, ये प्रोडक्ट मिल गया, फिर भी हम कंटिन्यूअसली पास कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली, तो फिर आगे एक और रिएक्शन होगा. तो दिस, ये दोनों होंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखो दिस टू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं, तो यू विल गेट CaHCO3 ट्वाइस. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड वो एक्वेस होगा, सॉल्ट वाटर सोल्यूबल, वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा. अंडरस्टूड. सो ये होगा पूरा एक रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, खास करके इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अभी हम देखेंगे. जनरल, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये अलग अलग फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के. लाइमस्टोन के फॉर्म में हो सकता है, चॉक के फॉर्म में हो सकता है, मार्बल के फॉर्म में भी हो सकता है. ये तीनों के प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे. एक सॉफ्ट होगा, एक ब्रिटल होगा, एक हार्ड होगा, वैसे. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. This is very important line, I have to say. Very very important line. ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आपको पता होना चाहिए. जो ये रिएक्शन सिंपल पूछते हैं, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड. आपको ये लिखना है. ये पूरा समझाना तो है ही एक्टिविटी के साथ, ये लाइन आना चाहिए. एंड वी विल सी इट्स बेसिक इक्वेशन एज वेल. thus the reaction can be summarized as, ये उसका रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, इट गिव्स अस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये तीन जो प्रोडक्ट्स है वो कंपलसरी होंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे. यहाँ पे देख सकते हो ये तीन चीज. ओके,
reactions of acids and bases with each other. We'll understand that with activity 2.6. Take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था when we add phenolphthalein to base there will be change in color, right? And that change will be, we'll see now what will be the change in color. आप भूल गए हो तो फिर से एक बार इमेज आपको दिखा दूंगा. Now what is the color of the solution? तो ऐसा करने से कैसे कौन सा कलर आएगा? This is the color which we will get, pinkish color. Okay. Now add a dilute HCl solution to the above solution drop by drop. जो अब हमें फिनोल्फ्थलीन एंड NaOH को मिक्स करने से एक जो सॉल्यूशन मिला है पिंकिश कलर का, उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl सॉल्यूशन हम ऐड करते जाएंगे. Is there any color change for the reaction mixture? तो कंटिन्यूअसली हम ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये पूरा मिक्सचर कलरलेस हो जाएगा. अंडरस्टूड? ये कलरलेस हो जाएगा मिक्सचर. मतलब अब मतलब समझोगे कि फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो कलर कैसा होता है? कलरलेस. मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? एसिडिक हो गया. Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? तो ये कलर चेंज क्यों हो गया? क्योंकि जब एसिड के अंदर हम फिनोल्फ्थलीन डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है? कलरलेस. अभी ये जो कलरलेस सॉल्यूशन मिला हमें उसके अंदर नाउ ऐड a few drops of NaOH to the above mixture. फिर से जो वो कलरलेस मिक्सचर जो हमें मिला उसके अंदर फिर से हम NaOH डाल रहे हैं. जो NaOH डालेंगे तो क्या होगा? वो फिर से बेस में कन्वर्ट हो जाएगा. बेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिनोल्फ्थलीन का कलर कैसा होता है बेस में? पिंक. तो फिर से हमें ऐसा कलर मिल जाएगा. ठीक है. तो ये करने का रीजन क्या है कि इससे हमें पता चलता है कि एसिड एंड बेस जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं. ओके. तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब उसका इफेक्ट कैंसिल हुआ? तो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप जब ऐड कर रहे हो तो 5 ड्रॉप के बाद मान लो कि 6th ड्रॉप में कलर चेंज हुआ, मतलब आपको समझ देना है कि 5 ड्रॉप तक वो 5वें ड्रॉप पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड, एंड वो एसिड भी नहीं रहेगा या बेस भी नहीं रहेगा. ठीक है. In the activity 2.6 we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. तो बेस का इफेक्ट हम एसिड से नलीफाई कर देते हैं. ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करेंगे तो एक पॉइंट के बाद बेस मतलब जो पिंक कलर का था वो कलरलेस हो जाएगा. एंड उल्टा भी किया हमने कि जब कलरलेस था तो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस ऐड किया तो फिर से वो कलर पिंकिश कलर हो गया. तो दोनों का इफेक्ट हम नलीफाई कर सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने से. The reaction taking place is written as NaOH aqueous, that is base, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, प्लस HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. दोनों एक्वेस है मतलब वाटर के साथ मिक्स है. ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, बेस रिएक्ट्स विद एसिड, इट विल गिव NaCl. उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. वो भी एक्वेस होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा. एंड प्लस वाटर. अंडरस्टूड? ये पूरा इक्वेशन न्यूट्रलाइजेशन का इक्वेशन बोल सकते हैं. इट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. When base and acid reacts, it gives salt and water. That reaction is called as neutralization reaction. इसका definition है. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. Okay, अभी बताया मैंने. उसका जनरल फॉर्म कैसा होगा? What will
be the general equation of neutralization reaction? How you can write it? So it can be written as any base plus any acid gives salt. तो ये बेस का सॉल्ट होगा प्लस वाटर. ओके, तो ये जनरल इक्वेशन है. आपको पूछ सकते हैं राइट डाउन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स जनरल इक्वेशन. तो ये आपको लिखना है, उसका डेफिनेशन है, ये उसका जनरल इक्वेशन है. ओके, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड. तो मेटल ऑक्साइड, तो बहुत सारे ऑक्साइड्स की आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ. आयरन ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं. उसका और एसिड का रिएक्शन कैसे होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम देखेंगे. ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में ये सब हमने दिखा हुआ है. Add a small amount of copper oxide in a beaker and add a dilute hydrochloric acid slowly while stirring. ये फर्स्ट स्टेप. तो दिस इज HCl, ये HCl है. ये पाउडर जो है वो है कॉपर ऑक्साइड. ओके, ये पाउडर को मैंने ये टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया. फुली अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको. वी हैव टेकन द पाउडर इन द टेस्ट ट्यूब. आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है, आई हैव एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस पाउडर, कॉपर सल्फेट पाउडर. ठीक है, तो कैसा होगा, ये लिक्विड जैसा कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा यू कैन सी डार्क डार्क ग्रीनिश कलर बोल सकते हैं, ऐसा टाइप का कलर है. एंड स्लोली स्लोली स्टर करना है इसके साथ. You will notice that color of the solution becomes blue green and copper oxide dissolves. अब ये स्टीर करने के बाद कैसा कलर आ जाता है, अभी देखेंगे हम कि ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा. एंड जो कॉपर ऑक्साइड होगा वो पूरा वाटर के सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. The blue-green color of a solution due to the formation of copper chloride. Copper chloride form होगा in the reaction. और ये रिएक्शन क्यों चेंज हो रहा है, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है. पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब वो कॉपर क्लोराइड बन गया है. पहले कॉपर ऑक्साइड था, अभी कॉपर क्लोराइड. ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहा, वो हो गया कन्वर्ट वाटर में. तो दिस इज द कलर यू विल सी, ये है ब्लू ग्रीन कलर. जब भी हमने ऐड किया कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो ये हो जाएगा ब्लू. ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर. इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कलर क्या चेंज हुआ है एंड किसको किसके साथ मिक्स किया था, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. एंड हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, कॉपर क्लोराइड, ये वाला. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as metal oxide मतलब हमने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिया है प्लस एसिड, here we have taken hydrochloric acid, and that both will give us salt and water. तो देखो थोड़ा सा ये रिलेटिव इक्वेशन जैसा लिख रहा है. इसके बदले जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन था वहां पे क्या था, बेस था. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड्स है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बेस के जैसी होती है. तो ही तो हमें जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. ठीक है, थोड़ा इंटररिलेट करना है आपको अगले वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ. तो मैं बोल सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं नेचर में. मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. ये हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था ये था कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड. जब भी बेस एंड एसिड रिएक्ट करते हैं तभी भी वाटर एंड सॉल्ट ही हमें देते हैं.
So from this point I can say metallic oxides are said to be basic oxides. जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर है, इसीलिए मैं उसको बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल सकता हूँ. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ये आपको ब्लैंक्स में, ट्रू और फॉल्स में, शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकते हैं कि ब्लैंक मेटल ऑक्साइड्स हैव आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लैंक ऑक्साइड्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स बोल सकते हो उसको. ठीक है. Now reaction of non-metallic oxides with base. You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, lime water in 2.5. वो हमने देखा. ठीक है, तो मिल्की वाइट प्रोडक्ट भी मिला था हमें. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक बेस है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. जब भी हाइड्रोक्साइड वर्ड आएगा मतलब आपको बेस ही मानना है. विच इज अ बेस reacts with carbon dioxide to produce salt and water. अब ये जो ऑक्साइड है वो कौन सा ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. ठीक है, ये जो कार्बन है वो नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड. तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर. कौन सा सॉल्ट मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वी हैव गॉट वाटर. Since this is similar to the reaction between base and acid, तो बेस एंड एसिड के रिएक्शन में फिर से हम रिकॉल करते हैं कि वी गॉट सॉल्ट एंड वाटर व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट विद ईच अदर. तो हियर आल्सो वी गॉट सॉल्ट एंड वाटर. वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. अंडरस्टूड. तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा. 2-3 बार रीड करोगे ऑटोमेटिकली याद आ जाए रहेगा. एंड जो बेसिक इक्वेशंस है जैसे जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, उसके बेस के ऊपर ये सब हमने डिराइव किए हुए हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है. So here is the end of the session 2 of chapter 2. In next lecture, we'll continue our chapter with the reaction of acids and base with water. Till then, revise the chapter 2, session 1 and session 2. If you have any doubt, feel free to contact. Thank you and have a great day.